وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مشیر سوشل ویلفیئر مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مشال یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری گورنر خیبر پختونخوا کو موصول ہو گئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پنجاب کے دورے پر ہیں، پیر کو سمری پر دستخط کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مشال یوسفزئی کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مشیر سوشل ویلفیئر مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹا دیا اور مشال یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری گورنر خیبر پختونخوا کو بھی موصول ہوئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پنجاب کے دورے پر ہیں، پیر کو سمری پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ میں ایک مشیر اور 3 معاونین خصوصی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کابینہ میں اضافے سے متعلق سمری پر دستخط کر کے منظوری کے لیے گورنر فیصل کریم کنڈی کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے احتشام علی کو مشیر صحت اور سہیل آفریدی کو معاون خصوصی کمیونیکیشن اینڈ ورکس بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پیر مصور غازی کو معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی اور نیک محمد کو بھی معاون خصوصی برائے ریلیف بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق قاسم علی شاہ کو وزیر صحت سے ہٹا کر سماجی بہبود کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ احتشام علی کو مشیر صحت اور سہیل آفریدی کو معاون کمیونیکیشن اینڈ ورکس بنانے کا امکان ہے۔ قاسم علی شاہ کو وزیر صحت سے ہٹا کر سماجی بہبود کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں گے یہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی نے کابینہ میں اضافے سے متعلق سمری پر دستخط کر کے منظوری کے لیے گورنر فیصل کریم کنڈی کو ارسال کر دی ہے۔ بلوچستان کا واقعہ انتہائی دلخراش، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ آرمی چیف کی سربراہی میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا بلوچستان کے واقعات میں پاک فوج ایف سی کے جوان معصوم شہری شہید ہوئے۔ 2018 کے بعد اب پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دشمنوں نے ناپاک سکیم بنائی۔ پاکستان اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گا اور ترقی کی راہ پر رواں دواں ہوں گے۔ ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے اور اس جو ایک انتہائی اہم اور پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے، اس کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کرنی ہے۔ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ تمام دو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹھی ہیں، انہوں نے مل کر یہ ایک ناپاک کا انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہید ہوئے، جن میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسر اور سپاہی شامل ہیں، جس میں ایف سی کے ہمارے جوان شامل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سولر بجلی کے حوالے سے سندھ حکومت نے ایک اور وعدہ پورا کر لیا۔ میڈل کلاس طبقے کو سولر سسٹم پر سبسڈی دیں گے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی پر دی گئی سبسڈی سمجھ سے بالا تر ہے۔ 2 مہینے کے چکر میں عوام کو 12 مہینے تکلیف میں رہنا پڑتا ہے۔ بجلی کا نظام تباہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے تو بانی پی ٹی آئی کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب لانگ مارچ ہے اور نہ عدم اعتماد۔ ملک بھر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہم پاکستان کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کو ہم کم قیمت پہ، اور اگر وہ ہمارا کرائیٹیریا میں آئیں تو مفت یہ نظام دلوا سکے۔ پاکستان کے عوام کو 2 مہینے کے چکر میں 12 مہینوں کو تکلیف ملتا ہے۔ جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس کو ٹانگے کانپے ٹانگنے شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ 46 ارب روپے سے عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف دینے کا ویژن نواز شریف کا ہے۔ کریڈٹ ان کو ہی ملنا چاہیے۔ جلد سولر پینل پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اگلی گرمیوں میں بجلی کے بل میں ریلیف دینے کے لیے کام ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے صارفین کو اگست اور ستمبر کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ بجلی میں ریلیف دیا جائے گا۔ 200 سے 500 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے گھریلو صارفین ریلیف حاصل کر سکیں گے۔
हुकूमत पंजाब के रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल अदायगी के लिए सारिफीन तक पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को कहा है अगवा शुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर उनका प्लान भी बन गया और वजीर आजम ओहदे से उतर गए तो वो भी अगवा हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि इन्होंने किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा। हमारे जो लोग रूपोश हैं वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमाओं को हिदायत है वो अभी बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जाते ही 4 हलके खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से हो रही है। मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। इसका मतलब आप पीटीआई पर इल्जाम लगाकर झूठ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई का मजीद कहना था हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूं 8 सितंबर को बाहर निकलें, किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त ना करें। अडयाला जेल में 3 नए अफसरान तैनात कर दिए गए। महकमा जेल खानाजात ने अफसरान की तकर्रो तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमाना नोटिफिकेशन के मुताबिक अडयाला जेल में नए 3 अफसरान तैनात कर दिए गए। ग्रेड 17 के अली अमीर शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सप्तैन शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव जेल मुकर्रर कर दिया गया, जबकि ग्रेड 16 की खातून ऑफिसर ज़ेबुनिसा को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात किया गया है। गजा और मगरबी किनारे पर जारी जंग बंद करो, कब्जा खत्म करो। मजलूम फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले बेईमाना मजालिम पर इसराइली रुकन पार्लियामेंट भी बोल पड़े। इसराइली रुकन पार्लियामेंट कासिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा वीडियो बयान में कहा कि मगरबी किनारे पर हमले का इसराइल की सलामती से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमती मनसूबाबंदी को बेनकाब करते हुए उन्होंने दावा किया है इसराइली हुकूमत फलस्तीनियों को अपने वतन से बेदखल करने और मगरबी किनारे पर हमला करके फलस्तीन के मजीद इलाकों पर कब्जा करने के दर पे है। इफरकास्ट ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की जानिब से जराइम की आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की पटिशन पर भी दस्तखत किए थे। जापान में ताकतवर समुद्री तूफान शान जजीरे से टकरा गया। 3 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। जनूब मगरबी साहिली इलाकों में शदीद बारिशें जारी हैं। समुद्री तूफान शान जापान के जजीरे क्यूशो से टकरा गया, जिसके बायस घरों की छतें उड़ गईं और दरख्त गिर गए। क्यूशो में तूफान से मुतादिद घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। जापानी मीडिया के मुताबिक क्यूशो में परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त जुमे तक मुअत्तल कर दी गई है। जापानी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस 252 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। क्यूशो में 2,54,000 से ज्यादा सारिफीन तूफान के बायस बिजली से महरूम हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से 8 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस ने थाना शहजाद टाउन के इलाका फराज टाउन में निजी बैंक की कैश वैन को लूटने वाले गैंग के सरगना को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लूटे गए 1,97,00,000 रुपए, 2 अदद गाड़ियां और असलहा एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद से जमान मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। डीआईजी डॉक्टर सैयद मुस्तफा तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बैंक डकैती के मुलजिमों की 2 दिन में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 6 में से 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। डीआईजी इस्लामाबाद ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में गिरोह के सरगना मीर रिजवान कुरैशी और नईम बहादुर ने बैंक के गार्ड्स पर फायरिंग की। मरकजी मुलजिम नईम बहादुर कराची में गन पॉइंट पर डकैती के मुताद्दिद मुकदमात में भी मतलूब है। जो मुलजिमान थे अल्लाह ताला ने आज हमें इस काबिल बनाया कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी का कहना था कि पुलिस टीमों ने मुलजिमान के कब्जा से लूटी गई रकम 1,97,00,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां और असलहा मा एम्यूनिशन भी बरामद कर लिया है। बैंक से तकरीबन 2,62 लाख के करीब वहां से उन्होंने ये बैंक रॉबरी की है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1,97,00,000 जो है वो हम रिकवर कर चुके हैं। डीआईजी ने मजीद कहा कि बैंकों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स की उम्र 45 साल से कम नहीं होगी और जब भी बैंक को कैश फराहम की जाएगी तो पुलिस अमला भी वहां पर मौजूद होगा। और अब बात कर लेते हैं मुल्क में मौसम के हवाले से। चलास बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने
मौसम को सर्द कर दिया है। इस मौसम में बर्फबारी का होना बड़ी अजीब सी बात है। मौसमी तब्दीलियों ने गिलगित बल्तिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब किए हुए हैं और मुख्तलिफ मौसमी तब्दीलियां भी रूनुमा हो रही हैं। बाबूसर टॉप पे वक्फे वक्फे से बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं। इस मौसम में बर्फबारी होने से मकामी लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। माल मवेशी को भी बर्फबारी से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद के नाजिमुद्दीन रोड पर गुज़श्ता 2 माह से जमा पानी में बारिश की आमद से इजाफा हो गया। पानी की सतह 2 फीट हो गई। शहरी गंदे पानी की वजह से शदीद परेशान हैं। कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखिए। नाजिमुद्दीन रोड पर 2 माह से रुका बारिश का पानी, सीवरेज का गंदा पानी शामिल होने के बाद मजीद बदबूदार और आलूदा हो गया है। ये आलूदा पानी न सिर्फ मोहलिक बीमारियों का बाइस बन रहा है बल्कि डेंगू फैलने का भी अंदेशा है। शहरी कहते हैं पानी रुके 2 माह से जायद हो गए, कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए पानी खड़ा है। यहाँ पे डेंगू वाले भी आए हैं और सीडीए वाले भी आए हैं, वो देख के चले गए हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। पीटीआर के दौर में ये मेन नाला तो बन गया है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल का परेशानी का सबब बना हुआ है। ये रिहायशी अफराद का कहना था पानी के बाइस लंबे रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। तालिबे इल्म भी परेशान नजर आए। लोगों को कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये पानी क्रॉस होता है, ये देख लें आदमी आ रहा है, इसका कोई भी नहीं सोचता। नए बाइक हैं, ये भी खराब हो गए। हम सुबह आते जाते वक्त हमें जो है ना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से पानी की फौरी निकासी करने के इक़दामात की अपील की है। मुस्तकबिल के इन मेहमानों को इस खड़े हुए पानी की वजह से डेंगू और मौलिक बीमारियां लगने का खतरा है। हुकूमत को इस मसले के सदेबाब के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन असलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी पीटीआई ने नाअहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर बानी पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे गए रेफरेंस पर मियांवाली से डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर बानी पीटीआई को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। दरखास्त के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रहा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।